कोई इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ठीक है, यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में क्या क्या रहेगा? सो ऑब्वियसली आपका रेडिएशन सोर्स रहेगा, उसमें मोनोक्रोमेटर्स फिल्टर्स रहेंगे, सैंपलिंग सेल रहेगा एंड डिटेक्टर्स। सो दीज आर द four parts of your spectrophotometer. First one is nothing but the radiation source, second one is nothing but the filters or monochromators, sampling cell, and last one is the detectors. इसमें और भी पार्ट आता है, जैसे मिरर्स आता है, ब्लिम स्प्लिटर आता है। दैट इज नॉट मच इम्पोर्टेंट फॉर योर जीपैट। जीपैट के लिए ये इम्पोर्टेंट है। सो व्हाट इज द रेडिएशन सोर्स? रेडिएशन सोर्स मीन्स व्हाट? रेडिएशन सोर्स इज नथिंग बट द सोर्स ऑफ लाइट। कि आपको यूवी लाइट चाहिए ना, तो कौन देगा? ठीक है, आप तो नहीं देंगे, मैं भी नहीं दूंगा, तो कौन देगा? रेडिएशन सोर्स देगा। रेडिएशन सोर्स कितने टाइप के होते हैं यूवी में? फर्स्ट, रेडिएशन सोर्स मीन्स द सोर्स विच विल गिव यू ए यूवी लाइट। ओके, जैसे आप बल्ब यूज करते हो घर में, ये क्या करेगा? आपको विजिबल लाइट देगा। वैसे ही बल्ब होता है यूवी में, उसको बोलते हैं यूवी लाइट। ओके, रेडिएशन सोर्स दैट विल गिव यू ए पर्टिकुलर रेडिएशन ऑफ डिजायर्ड वेवलेंथ। डिजायर्ड वेवलेंथ का रेडिएशन देने वाले सोर्स क्या है? रेडिएशन सोर्स है। So if you want to measure a visible range, then you need a visible radiation. Okay, you need a radiation source which emit the rays, a visible radiation. If you want UV, you want a source which will give you which will emit the radiation in the UV range. Okay, like that. So what are the radiation source? Okay, first one is a tungsten filament. Tungsten filament or tungsten wire. Most common source. It is the most common source for a visible. Okay, so it is a source for visible tungsten filament. Tungsten filament क्या है? विजिबल के लिए सोर्स है। सो यू माइट हैव सीन द बल्ब्स, ओल्ड बल्ब्स, जो पुराने जमाने के बल्ब होते हैं, तो वो क्या है? उसमें ग्लास का एक ग्लास रहता है, बाहर से अंदर क्या रहता है? एक वायर लटका हुआ रहता है, टंगस्टन रहता है, दैट इज टंगस्टन फिलामेंट। सो दैट टंगस्टन फिलामेंट get heated when current supplied to that filament, and it emits the rays, it emits the visible light. So tungsten filament, it is heated with the current, and then it is emitted. It emits the radiation in the range of 400 to 7500 angstrom. That is a visible range, 400 to 750 nanometer. It is a device used to select a particular. Okay, so that is the first source used for the visible. Okay, visible. Now second source is the hydrogen lamp. Hydrogen lamp. So hydrogen gas is there with a high pressure, and then electric current is passed or electric discharge is passed. Now it will emit the radiation. It will emit the radiation in the range of 3500 angstrom. मतलब क्या? ये 350 नैनोमीटर से लेके 120 नैनोमीटर तक ये रेज इमिट करेंगे। सो इट इज यूज्ड फॉर यूवी। 350 नैनोमीटर, 120 नैनोमीटर, so 120 nanometer to 350 nanometer, that is a 3500 to 1200 angstrom. Unit shift difference है, nanometer में unit different होता है। So it is used for the UV purpose, UV ray. Okay, after that there is a deuterium lamp. Hydrogen lamp, deuterium lamp. तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस होता है हाइड्रोजन जो है आइसोटोप, that is known as deuterium. Okay, H12. Okay, deuterium and tritium. Hydrogen का there are three isotopes of hydrogen. Hydrogen is the one normal. Okay, then deuterium is the second and tritium is the third. So deuterium lamp, deuterium is used instead of hydrogen. Okay, and then rest of the process is same. So you have to supply the current, and it will emit the UV radiations. It is also used for the UV. Then fourth one is xenon discharge lamp. So in this xenon gas is used. Rest of the things are similar. Then mercury arc. Mercury vapors are used. They are under pressure in the bulb and they are heated. So it is not suitable for continuous spectral line. It is not suitable for continuous spectral line. Okay, not है यहाँ पे, not suitable for continuous spectral line. So most question ऐसा आता है, one of the following is the most commonly used radiation source in the ultraviolet spectroscopy or UV spectroscopy. तो क्वेश्चन आता है आपको कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड सोर्स इन द यूवी, तो क्या आंसर रहेगा इसका? बोलो। ओके, सो टंगस्टन इज फॉर विजिबल रेंज, विजिबल कलरीमेट्री में यूज होता है। सो टंगस्टन फिलामेंट इज यूज्ड इन द कलरीमेट्री, सो इट इज नॉट फॉर यूवी. सो दिस हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैम्प इज यूज्ड इन यूवी, एंड ड्यूटेरियम लैम्प इज यूज्ड इन यूवी. जेनॉन का भी यूवी में नहीं आता है, जेनॉन आर्क इज आल्सो यूज्ड, और मर्करी. सो आउट ऑफ दैट रिमेंबर द मोस्ट कॉमन सोर्स फॉर UV spectrophotometer is nothing but the deuterium lamp. Most common source for UV light radiation source. Most common radiation source for
UV spectrophotometer is nothing but the deuterium lamp. Okay, most common source is the deuterium lamp. Deuterium lamp क्या है? सबसे common source. Now you got a radiation. Now radiation emitted by this source. ये source क्या radiation emit करते हैं? जैसे मान लीजिए 120 नैनोमीटर से लेके 350 नैनोमीटर तक radiation use करेंगे, emit करेंगे, देंगे आपको. After blowing this deuterium lamp, it will emit the radiation in the UV region, but it will not emit the single wavelength. आपको चाहिए सिंगल वेवलेंथ, आपको चाहिए कि जैसे आपको चाहिए कि 400 नैनोमीटर 401 नैनोमीटर का वेवलेंथ चाहिए, बट यहाँ पे ड्यूटेरियम लैम्प या फिर हाइड्रोजन लैम्प एक रेंज में देता है, आपको एक रेंज में इमिट करता है. सो यू नीड अ पर्टिकुलर वेवलेंथ. नो व्हाट एवर रेडिएशन इमिटेड बाय दिस रेडिएशन सोर्स, दैट इज नोन एज अ पॉलीक्रोमेटिक लाइट. पॉलीक्रोमेटिक मतलब उसमें बहुत सारे वेवलेंथ होंगे. यहाँ पे देखा हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैम्प कितना देगा आपको 120 से लेके 350 nanometer तक. In that you will have 120, 121, 122, 200, 250 like that. Okay, so they are known as a polychromatic light. Now you need a monochromatic light, and for that you need a second devices known as a filters or monochrome. Now filters are used in the colorimeter. Filters are used in the colorimeter, and monochromators they are used in the UV spectrophotometer. Now device, what is it? Device used to select the particular wavelength. Okay, आपको पॉलीक्रोमेटिक लाइट आ रहा है रेडिएशन सोर्स से, उसको मोनोक्रोमेटिक करने के लिए इसका यूज होता है मोनोक्रोमेटर्स और फिल्टर्स. नाउ फिल्टर्स आर यूज्ड इन द colorimetry. We have seen this, so I'm not going to repeat it. What is the absorption filter, what is the interference filter? They are used in the colorimetry. Now monochromators they are used in the UV. So monochromators, okay, so they will only transmit the desired wavelength light. आपको 275 नैनोमीटर चाहिए तो उतना ही वेवलेंथ का लाइट वो पास करेगा. So monochromator passes the band of wavelength from beam of light, passes the particular band of wavelength from beam of light. So जो सोर्स है, सोर्स से आएगा आपको एक बैंड, पर्टिकुलर वेवलेंथ का बैंड नहीं आएगा, इसमें सब वेवलेंथ मिक्स होता है. मिक्सचर ऑफ वेवलेंथ, यूवी लाइट ऑफ मिक्सचर ऑफ वेवलेंथ ऑफ, उसमें से एक पर्टिकुलर वेवलेंथ सिलेक्ट करने वाला काम किसका है? मोनोक्रोमेटर. सो मोनो मीन्स वन, क्रोमेटर मीन्स कलर. जैसे होता है कि आपका लाइट पास किया प्रिज्म से तो वो डिस्पर्स हो जाएगा इनटू 7 कलर्स ऑफ रेनबो. So each every one color is known as a monochromatic light. So likewise that. So single wavelength light is known as a monochromatic light. So monochromator will pass only single wavelength. Okay. So there are two types of monochromator we have seen already. So prism monochromators and grating monochromators. Prism monochromators, grating monochromators. Last day we have seen. In case of UV spectrophotometer, आपल्या UV spectrophotometer मध्ये the monochromators they are mostly made from a either glass or quartz or alkyl halides. Mostly they are made of quartz. Now sampling cell जिसमें आपका sample रहेगा, sampling cell for UV visible they are known as a cuvettes, and they should be matched cuvettes. They should have same dimension. We have seen in the last slide. Normally available as a cuvettes of 1 centimeter or 0.5 centimeter part length. ये normally इनका dimension होता है. For visible you need a larger sampling cell like your test tube. UV में cuvettes होता है. Now detectors मतलब okay, after this radiation source will emit the radiation, the monochromators will filter the radiation of desired wavelength, and it will throw on a sampling cell. In the sample will absorb the radiation, and remaining radiation will be transmitted, or transmitted radiation is measured in the detector. Where detectors will measure the transmitted radiation. So there are different kind of detectors. So first one is a photovoltaic cell or barrier cell layer. We have already seen this in the last session. So made up of a metal base, iron or aluminum coated with the silver. Okay, and also semiconductor metal like selenium. We have seen detail about this photovoltaic cell. Okay, we have also seen about the phototube. We have also seen about the photomultiplier. So remember, most commonly used detector in the UV is nothing but the photomultiplier tubes. इसमें होता क्या है कि मान लीजिए बैरियर सेल लेयर, और इस एक्चुअली आई हैव एक्सप्लेन दिस थिंग्स यस्टरडे आल्सो. सो कैसे होता है, जैसे लाइट आता है सैंपल से, ओके, जो सैंपल से जो रेज आएगा वो आपका गिरेगा डिटेक्टर पे. डिटेक्टर के ऊपर गिरने के बाद में डिटेक्टर में सेमीकंडक्टर होगा, एक कैथोड होगा, एक एनोड होगा.
तो जब लाइट सेमीकंडक्टर के ऊपर गिरेगा तो पहले तो सेमीकंडक्टर जो है वो इलेक्ट्रॉन मोबाइल नहीं होते उसके ऊपर। जब लाइट गिरता है तो सेमीकंडक्टर विल बिकम अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट विल मूव द इलेक्ट्रॉन्स विल मूव फ्रॉम, okay, from that anode to cathode, and there will be flow of current, and that current is measured, and that current is converted into that convert deflection is converted into the intensity of light. That is the detector. Okay, photo multiplied tubes, they are most commonly used in the, then remember for colorimeter का accuracy थोड़ा कम रहता है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का accuracy ज़्यादा रहता है. So absorption wavelength of a typical functional group जैसे होता है क्रोमोफोर, जैसे अमाइन क्रोमोफोर है तो वो 195 नैनोमीटर को एब्सॉर्ब करेगा, ब्रोमाइड है तो 208, ठीक है, लाइक दैट. अगर आयोडीन है तो 260, थायोकेटोन है तो 205, ईस्टर है तो 205 अगेन, ठीक है, अल्डिहाइड है तो 210, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो 200 टू 210 नैनोमीटर, नाइट्रो ग्रुप है तो 210 को एब्सॉर्ब करेगा, लाइक नाइट्राइल है, सो कॉन्जुगेटेड ओलिफिन्स है तो ये एब्सॉर्ब करेंगे. सो दीज आर द क्रोमोफोर मींस द स्ट्रक्चर इन द कंपाउंड रिस्पांसिबल फॉर द absorption of UV light. Oxochrome means these are also some functional group itself, themselves they will not act as a chromophore, but if they are present in the compound along with the chromophore, they will increase the absorption maxima towards the longer wavelength, known as a bathochromy. Now solvent used in the UV spectrophotometry. Solvent कौन सा यूज करेंगे? Remember over here, the solvent you have to use in the UV spectrophotometry to dissolve your sample. तो ऐसा नहीं होना चाहिए that solvent should not absorb the UV radiation of desired value. तो मान लीजिए आपको पैरासिटामोल का मेजर करना है 275 नैनोमीटर पे, अगर आपने कुछ ऐसा सॉल्वेंट यूज किया जो 275 पे एब्सॉर्ब करता है यूवी, तो दैट विल इंटरफेयर विद योर एनालिसिस. सो यू हैव टू यूज सॉल्वेंट दैट इज नॉट एब्सॉर्ब, they will not absorb the light in the UV region. Okay, so that's right. So solvents and their upper wavelength limit. क्वेश्चन आ चुके हैं जीपैट में 2 बार. Okay, what is the solvent cutoff for ethanol? What is solvent cutoff for your hexane? Solvent cutoff for your methanol, etc. Benzene, etc. So ethanol का solvent cutoff होता है 210 नैनोमीटर, मतलब 210 नैनोमीटर के ही ऊपर ये एब्सॉर्ब करता है, उसके बाद में एब्सॉर्ब नहीं करता. सपोज आपका ड्रग है जो 205 नैनोमीटर में एब्सॉर्प्शन दिखाता है, तो उसमें आप इथेनॉल यूज करके कोई फायदा नहीं, इट विल कॉज मिस इंटरप्रिटेशन. सो इफ योर कंपाउंड एब्सॉर्ब 300 नैनोमीटर, देन यू कैन यूज इथेनॉल. सो whatever solvent you are using for UV, that should not interfere with the measurement being made at a particular wavelength. That's why you need to understand the solvent cutoffs. So ethanol has a solvent cutoff of 210 nanometer, hexane also same 210, डाइथिल 210, वाटर का क्या है 205, 205. इसके आगे आप उसको यूज कर सकते हो. बेंजीन कटऑफ ऑफ 280, मिथेनॉल 210, साइक्लोहेक्सेन 210, देन क्लोरोफॉर्म 245, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन 220, कार्बन टेट्राक्लोराइड 265. सॉल्वेंट कटऑफ इंपॉर्टेंट है, और एक बार देख लो, अलग अलग बुक में थोड़ा सा अलग अलग दिया है. तो वाटर का सॉल्वेंट कटऑफ है 205, मिथेनॉल का है 210, इथेनॉल 210, ईथर 210, क्लोरोफॉर्म 245, कार्बन टेट्राक्लोराइड 265, साइक्लोहेक्सेन 210, डाइक्लोरो इथेन 220. सॉल्वेंट कटऑफ्स याद रखो, क्वेश्चन आता ही आता है इसको, ये आपको बुक में भी है, आपको रटना पड़ेगा, रटना है रटो, नहीं रटना है मत. सो कम से कम एटलीस्ट यू हैव टू रिमेंबर 2-3 सॉल्वेंट्स एंड देयर कटऑफ. कौन से वाटर का मालूम होना चाहिए. वाटर का सॉल्वेंट कटऑफ होता है 205, वाटर 205, वाटर. देन मिथेनॉल का होता है 210, इथेनॉल का होता है 210, सॉरी नहीं, वाटर का होता है 205, 205, मिथेनॉल 210, इथेनॉल 210, ईथर 210, ठीक है. देन क्लोरोफॉर्म का होता है 245, 245. सो एटलीस्ट 2-4 कंपाउंड 2-4 सॉल्वेंट का कट ऑफ को याद होना चाहिए. एप्लीकेशंस ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी. फर्स्ट, डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप. As spectrum is transparent about 200 micrometer, there is option of conjugation, carbonyl compound, aromatics, iodoatom. मतलब if your sample absorb in the UV region more than 200 nanometer, that means your compound has some kind of conjugation. Okay, उसमें double bonds है, okay, to identify the functional group.
टू डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन, कितना कॉन्जुगेशन है, कितने डबल बॉन्ड्स है, कितना लंबा है. फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ पॉलीन्स, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीजेस द एब्सॉर्प्शन टुवर्ड्स द लॉन्गर वेवलेंथ. क्या है? टुवर्ड्स द लॉन्गर वेवलेंथ. एक्सटेंशन ऑफ कॉन्जुगेशन इंक्रीजेस द absorption towards the longer wavelength. So identification of functional group, then determination of extent of conjugation to distinguish between conjugated and non-conjugated compound. That is also application of UV visible. Identification of unknown compound, then examination of polynuclear hydrocarbons, structural elucidation of vitamin A and vitamin K. Because इसमें क्या होता है कि डबल बॉन्ड्स होते हैं विटामिन ए और विटामिन के में. Structural elucidation of vitamin A and K. Then determination of configuration of geometric isomer like cis and trans isomer. So using UV you can distinguish between cis and trans. ठीक है, cis and trans. So, जैसे ही होता है, ये क्या है अभी, ये हो गया आपका cis मॉलिक्यूल, क्योंकि दोनों भी बल्कि ग्रुप क्या है, एक ही साइड पे है, cis ग्रुप. ये हो गया आपका ट्रांस. ठीक है, ट्रांस. सो जो उसमें जो ट्रांस वाला होता है दे एब्सॉर्ब. ओके, इसमें जो ट्रांस वाला होता है इट एब्सॉर्ब टू ए लॉन्गर वेवलेंथ. जो ट्रांस वाला होता है वो एब्सॉर्ब करता है लॉन्गर वेवलेंथ. फॉर एग्जांपल सिस्टिल्बिन एब्सॉर्प्शन मैक्सिमा इज 283 नैनोमीटर एंड ट्रांसटिल्बिन क्या होता है 294 नैनोमीटर. तो ट्रांस वाला जो है वो ज्यादा वेवलेंथ के ऊपर एब्सॉर्ब होता है, मतलब इट रिक्वायर्स लेस एनर्जी. सिस वाला ज्यादा एनर्जी लगता है. ओके, प्रेफरेंस ओवर टार्टोमेरिक फॉर्म. नो द प्रेफरेंस ओवर टार्टोमेरिक फॉर्म इज आल्सो एप्लीकेशन. To distinguish between equatorial and axial position in the conformation, to determine the strength of hydrogen bonding, detection of impurity to determine the dissociation constant of acid and bases, to study the chemical kinetics, reaction progress. Then now Woodward-Fisher rule for calculation of lambda max. Woodward-Fisher rule for calculation of lambda max. Conjugation कितना है, कितना नहीं, उसके ऊपर कितना lambda max आएगा, इसके ऊपर कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है. गेट जब था तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते थे. सो वुडवर्ड एंड फिशर इन 1920 they have given us some set of rules. They have given us some set of rules by which you can predict the lambda maximum absorption maximum of compound. So okay, so if homoannular dyne is there, homoannular dyne मतलब रिंग है, एक रिंग के अंदर बांधने वाला. होमोएनुलर हेटेरोएनुलर क्या होता है बाद में. सो रिमेंबर होमोएनुलर डाइन का जो बेस वैल्यू होता है, so बेस वैल्यू फॉर होमोएनुलर डाइन और इट इज आल्सो नोन एज अ सिसॉइड, that is a 253 nanometer, and for heteroannular dyne it is a 214 nanometer. Okay, now if there is a double bond extending conjugation, so that is known as a, you have to add 30 plus. Okay? If there is a alkyl substitute or ring residue, you have to add. If there is exocyclic double bond, you have to add again 5. And for groupings, polar groupings also, if there is a if there is ether group, 6 add. Chlorobromo, you have to add 5. 9. Okay, NR2, okay, you have to add 60. Okay. So this you have to remember. आपको ये याद रखना पड़ेगा. I will explain this again. Woodward-Fisher rule for determination of lambda max of the compound. Okay, so you can see over here यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया है. It is known as a conjugated dyne. Okay, first structure conjugated dyne. तो अगर ये ऐसा डाइन है, so CH2 double bond CH2 CH double bond CH2 double bond CH2 CH. So this is known as a dyne. Okay, so this is known as dyne. It is known as a conjugated dyne. उसका बेस वैल्यू रहेगा 215. ठीक है, 215 215 नैनोमीटर. बस इतना ही जो सर्कल किया है इतना, उसका ये वैल्यू है 215 नैनोमीटर. ओके, ये बाकी का है, ये अल्काइल रेसिड्यू है, ये अल्काइल रेसिड्यू यहाँ से टूटेगा, ये इसका वैल्यू होता है 5, वो ऐड करना है. 220 विल बी द एब्सॉर्प्शन मैक्सिमम. ठीक है, लाइक ऐसा. देन ये होता है कॉन्जुगेटेड डाइन, सिंपल कॉन्जुगेटेड डाइन. नाउ होमोएनुलर डाइन कैसा होता है, होमोएनुलर डाइन. सो इफ दिस इज स्ट्रक्चर नोन एज होमोएनुलर डाइन. दो रिंग है, उसमें एक ही रिंग में डाइन है, मतलब डाइन कौन सा, ये वाला पार्ट. डबल CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH. ओके, CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH2 डबल बॉन्ड CH2. सो ऐसा स्ट्रक्चर उसको डाइन बोलेंगे. कॉन्जुगेटेड डाइन ये सिंपल होता है, ए साइक्लिक डाइन बोलते हैं उसको, कॉन्जुगेटेड डाइन और ए साइक्लिक डाइन. और साइक्लिक डाइन में दो टाइप का आता है. फर्स्ट होता है होमोएनुलर, मतलब एक ही रिंग में अगर वो डाइन है तो उसको बोलेंगे होमोएनुलर, और उसका बेस वैल्यू आपको लेना है 253. नाउ ये स्ट्रक्चर देखो आप. नाउ देयर आर अगेन टू रिंग्स.
लेकिन यहाँ पे क्या है, एक ही रिंग में डाइन था, अब ये एक रिंग में नहीं है, दो रिंग में। सो यू हैव टू सिलेक्ट द डाइन लाइक दिस। सो दिस इज नोन एज अ हेटेरो एनुलर डाइन। हेटेरो एनुलर डाइन। तो होमो एनुलर डाइन जो है उसको सिसॉइड भी बोलते हैं, सिसॉइड। एंड हेटेरो एनुलर डाइन जो है उसको ट्रांसॉइड बोलते हैं, जैसे ये था ना। ओके, होमो एनुलर डाइन को बोलते हैं सिसॉइड एंड हेटेरो एनुलर डाइन को बोलते हैं ट्रांसॉइड। होमो एनुलर डाइन को सिसॉइड बोलते हैं, हेटेरो एनुलर को ट्रांसॉइड बोलते हैं। होमो एनुलर डाइन का होता है 253 नैनोमीटर एज अ बेस वैल्यू, हेटेरो एनुलर का होता है 215, कुछ बुक्स में 214 भी दिया है। हो गई ना, यहाँ पे देखो वो हेटेरो एनुलर जो ओपन चेन होता है वो हेटेरो एनुलर ही होता है। सो हेटेरो एनुलर डाइन प्लस, ठीक है, ये डाइन हुआ है, उसके बाद में और एक डबल बॉन्ड है। तो दिस डबल बॉन्ड इज नोन एज अ डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन। तो उसका 30 ऐड करना पड़ेगा आपको। ओके, उसके बाद में ये अल्काइल रेसिड्यू, ये जस्ट वो एक्चुअली इट इज नॉट अ वैल्यू, अल्काइल रेसिड्यू यहाँ पे कंसिडर नहीं किया है, वो पूरा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज हेटेरोएनुलर एंड डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन। ये डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग, इसमें क्या क्या है देखो, यहाँ पे होमो एनुलर डाइन है, यहाँ पे क्या है, होमो एनुलर डाइन। और यहाँ पे क्या है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। ओके, डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन, ये जो है डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन है। और जो भी ऐसा दो रिंग स्ट्रक्चर रहेगा उसमें एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होता है, और बाद में यहाँ से टूटेगा एक, यहाँ से टूटेगा एक, यहाँ से टूटेगा। सो दे आर नोन एज अल्काइल रेसिड्यू। जितनी जगह से टूटेगा उतने 5 ऐड करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हिट होमोएनुलर डाइन है, डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन है। सो बेस वैल्यू रहेगा 253 प्लस 30, यू हैव टू ऐड 30 फॉर डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन। जैसे यहाँ पे हेटेरोएनुलर डाइन रहेगा, यहाँ पे क्या है, हेटेरोएनुलर डाइन, तो इसका बेस वैल्यू रहेगा 215, 214 जो भी है। एंड देन बाद में ये यहाँ से एक कट मारेगा, यहाँ से एक कट, यहाँ से एक कट, 3 अल्काइल रेसिड्यू। एंड ये 5 किसका है, 5 जो है, ऐसा जब हेटेरोएनुलर डाइन होता है ना, तो उसमें क्या है कि जैसे ये रिंग है, ये रिंग, ये रिंग के लिए ये जो डबल बॉन्ड है ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, ये रिंग के लिए ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। तो ऐसा ऐसा जब हेटेरोएनुलर डाइन होता है उसमें एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होता ही होता है, हेटेरोएनुलर प्लस अल्काइल रेसिड्यू। ठीक है, ये एक्सप्लेन किया है सिर्फ, अल्काइल रेसिड्यू क्या होता है, हेटेरोएनुलर क्या होता है, डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन क्या होता है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड क्या होता है, ये सिर्फ एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। बाद में इसका कैलकुलेट करना पड़ता है। सो जैसे ये यहाँ पे हेटेरोएनुलर डाइन आपको पहले दिखेगा, ये सिलेक्ट करना है हेटेरोएनुलर डाइन, हेटेरोएनुलर डाइन, इसका बेस वैल्यू लिख लो आप। बाद में इसमें डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन है क्या, नहीं, तो अभी क्या है, सिर्फ अल्काइल रेसिड्यू। तो यहाँ से एक तोड़ो, यहाँ से एक तोड़ो, यहाँ से एक तोड़ो, मतलब there are 3 alkyl residue, so each alkyl residue you have to add 5, so 215 is the base value and plus 15 20। ये एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ आपको, ठीक है। अभी फर्स्ट एग्जांपल देखो, क्वेश्चन आएगा आपको, डिटरमाइन द लैम्डा मैक्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड बाय यूजिंग वुडवर्ड फिशर रूल। ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको, ठीक है। डिटरमाइन द लैम्डा मैक्स ऑफ द कंपाउंड बाय यूजिंग वुडवर्ड फिशर रूल, क्वेश्चन ऐसा आएगा। स्ट्रक्चर देंगे, मान लीजिए ये स्ट्रक्चर दिया है, सिर्फ स्ट्रक्चर देंगे, ऐसा ये डॉट डॉट और ये जैसे ये जो किया है मैंने, ऐसा कुछ नहीं देंगे, सिर्फ स्ट्रक्चर देंगे आपको, ठीक है। सो यू हैव टू फर्स्ट आइडेंटिफाई द डाइन। जैसे ये डाइन मैंने आइडेंटिफाई किया है यहाँ पे, कौन सा, ये सर्कल बना, ये वाला क्या है आपका डाइन है, कौन सा, हेटेरोएनुलर, तो उसका बेस वैल्यू कितना है 215, लिख लो ये पहले। फर्स्ट देयर आर सर्टेन रूल्स, फर्स्ट you have to identify the type of dye, then write down the base value, after that identify if double bond extending conjugation is there, if yes then add 30, if no then leave. Okay, after that you have to, after that you have to see whether there is exocyclic double bond or not. If exocyclic double bond is there, you have to add +5, if not then leave. Then after that alkyl residue, okay, and then you have to make a sum of that values, okay. So जैसे यहाँ पे दिखा है कि यहाँ पे कौन सा लाइन है, हेटेरोएनुलर, ठीक है, तो ओपन चेन में हेटेरोएनुलर होता है, ठीक है, तो उसका 215 बेस वैल्यू, ठीक है। अभी देखो अल्काइल रेसिड्यू टूटेगा कहाँ से, ये लाइन सिलेक्ट किया है, लेकिन ये क्या है, यहाँ से टूटेगा, तो ये इसका 5 वैल्यू ऐड करना है। सो 215 प्लस 5, टोटल वैल्यू कितना आएगा 220। ओके, ये हो गया कैलकुलेटेड वैल्यू। अब ऑब्जर्व वैल्यू उसका थोड़ा प्लस माइनस होता है, ठीक है। सो ये कैलकुलेटेड वैल्यू आएगा 220, इसका ऑब्जर्व वैल्यू आता है 225। ये दूसरा एग्जांपल। सो इन दैट केस नाउ स्ट्रक्चर देंगे आपको ये ऐसा, बाकी जो उसके ऊपर जो किया है मैंने वो नहीं देंगे, ठीक है, वो आपको खुद करना पड़ेगा, ये टैक्ट होता है। फर्स्ट क्या है कि यू हैव टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डाइन, कौन सा डाइन है यहाँ पे देखो, ये इसको मार्क कर लो पहले, इट इज नोन एज अ होमो एनुलर डाइन।
उसका बेस वैल्यू कितना है 253। ठीक है, अभी क्या करना है आपको कि होमो एनुलर तो हो गया, अभी उसके बाद में डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन है क्या, यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड दूसरा है क्या, नहीं है। ठीक है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है क्या, नहीं है, यहाँ पे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। ठीक है, ये रिंग को ये एक्सोसाइक्लिक है। ठीक है, ये जो रिंग है, ये रिंग, इसको ये बॉन्ड जो है वो एक्सोसाइक्लिक है, एक्सोसाइक्लिक है। तो एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है तो उसका 5 ऐड करो। ठीक है, ये 5 एक्सोसाइक्लिक। अभी रिंग रेसिड्यू, ये कहाँ से टूटेगा, यहाँ से एक टूटेगा, यहाँ से एक टूटेगा और यहाँ से एक टूटेगा, मतलब 3। सो 5 इंटू 3 15। सो 15, ये देखो प्लस 15, 3 रिंग रेसिड्यू 250, 253 प्लस 15 प्लस 5, इसका वैल्यू आएगा 273 नैनोमीटर। ये होगा आपका कैलकुलेटेड वैल्यू। और ऑब्जर्व वैल्यू कुछ आएगा उसका 280 वगैरह कुछ आएगा। वो थर्ड एग्जाम्पल आपको स्ट्रक्चर देंगे ऐसा, एंड विल आस्क यू कैलकुलेट द लैम्डा मैक्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। सो पहले तो क्या करना है, स्ट्रक्चर में डाइन कहाँ पे, ये देखो यहाँ पे डाइन, यहाँ पे डाइन, ये कौन सा है, हिट्रो एनुलर, तो उसका बेस वैल्यू क्या है 215, तो लिख लो 215। ठीक है, उसके बाद में अभी इसके लिए एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, ये रिंग के लिए एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है ये, तो उसका एक्सोसाइक्लिक का 5 ऐड। डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन है क्या, नहीं, तो छोड़ो। अभी लास्ट क्या है, रिंग रेसिड्यू करना है, यहाँ से एक टूटेगा, यहाँ से एक टूटेगा और यहाँ से एक टूटेगा, तो देयर आर 3 रिंग रेसिड्यू। सो 15, 5 इंटू 3 15, so 215 plus 15 plus 5, so 235, that is a observe a calculated value of this structure। okay, observe वो 250 तक आएगा। अभी ये फोर्थ स्ट्रक्चर है, तो पहले क्या करना है कि डाइन सिलेक्ट करना है, डाइन सिलेक्ट करना है, डाइन कौन सा भी कर सकते हो, जैसे मैंने ये किया है तो आप ये भी कर सकते हो, जैसे कौन सा भी करो। ठीक है, तो दोनों का वैल्यू कितना रहेगा, बेस वैल्यू 250 बिकॉज इट इज हेटेरो एनुलर। जैसे मान लीजिए एक किया आपने पहले, कौन सा भी एक किया पहले, जैसे मान लीजिए मैंने ये सिलेक्ट किया डाइन, सो इसका बेस वैल्यू रहेगा 215। उसके बाद में यहाँ पे ये क्या रहेगा, डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन, डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन, उसका आपको 30 ऐड करना पड़ेगा 30। ओके, अगर आपने डाइन उल्टा सेलेक्ट किया, जैसे ऐसा ही है, जैसे अगर आपने डाइन कौन सा सेलेक्ट किया, इधर से किया, यहाँ से डाइन सेलेक्ट किया ये, तो ये वाला जो है वो डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन में है, इधर से किया तो ये वाला डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन। सो बेस वैल्यू रहेगा 215 प्लस डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन। अभी रिंग रेसिड्यू देखो कितना रिंग रेसिड्यू, यहाँ से एक कटेगा, यहाँ से एक कटेगा, सो 2 है, 5 इंटू 2 10, सो 215 प्लस 30 प्लस 10 रिंग रेसिड्यू आएगा 295 नैनोमीटर। ऑब्जर्व वैल्यू, कैलकुलेटेड वैल्यू। जैसे मान लीजिए कि ये स्ट्रक्चर दिया आपको एंड पूछा है कैलकुलेट द लैम्डा मैक्स ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे देखना है कि डाइन सेलेक्ट करना है, कौन सा डाइन है, यहाँ पे देखो ये यहाँ पे डाइन है, इसको बोलते हैं होमो एनुलर डाइन, तो उसका वैल्यू रहता है 253। ये आपको याद ही करना पड़ेगा वैल्यू, उसके लिए कोई ट्रिक नहीं रहता, तो 253 लिख लो। उसके बाद में डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन है क्या, तो ऑब्वियसली यहाँ पे डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन है, तो उसका 30 ऐड करना है। ओके, डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन कॅल्क्युलेशन चुकला असेल तर बघा, कॅल्क्युलेशन चुकू शकतं, काय अडचण नाही, तेवढं ते ऍड करलं नाही। तुम्हाला एक जस्ट सांगतो मी कसं कॅल्क्युलेट करायचं, आप तुम्हाला व्हॅल्यू तुम्हाला लक्षात ठेवायची आहे, करेक्ट है। सो यहाँ पे बेस वैल्यू 253, एक डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन है यहाँ पे, वो 30 ऐड करना है आपको, 3 रिंग रेसिड्यूज है और एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, तो उसका आएगा 303। जैसे ये वाला ये अगेन होमो एनुलर आएगा, बेस वैल्यू लिख लो इसका 253, ये होगा डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन, तो उसका 30 ऐड करो, प्लस ईयरिंग के लिए ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, ईयरिंग के लिए ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, ऐड करते जाओ, इसका 313 आएगा। अभी ये जो है इसका ये डाइन आएगा होमो एनुलर, ठीक है, रिंग रेसिड्यू सिर्फ आएगा एंड एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन नहीं आएगा। बेस वैल्यू ऐसा भी जो भी स्ट्रक्चर है उसका ऐसे ही करना है आपको। पहले क्या करना है कि डाइन सिलेक्ट करना है, कौन सा डाइन है, बाद में डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन है क्या, नहीं है, अगर है तो उसका ऐड करना है, अगर नहीं है तो छोड़ दो। अभी इसमें डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन नहीं है क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड है ये दूर है बहुत, ये डबल बॉन्ड अगर यहाँ पे रहता है यहाँ पे, तो डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन कैलकुलेट कर लेते हो, ये इधर नहीं है तो सिर्फ अल्काइल रेसिड्यू 1 2 3 एंड 4, 15 प्लस 4 अल्काइल रेसिड्यू 20,
235 ऐसा कैलकुलेट आपको करना है। देन अगेन फॉर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स, ठीक है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स, ये कीटोन है अनसैचुरेटेड कीटोन है। तो ये जो है हाइड्रोजन, ये जो कार्बन है उसको बोलेंगे अल्फा, ये बीटा, ये गामा एंड ये डेल्टा। तो ये लीनियर भी रह सकता है, साइक्लिक भी रह सकता है। अगर साइक्लिक ऐसा है तो उसको 202 बेस वैल्यू लेंगे। अटैचमेंट है कोई अल्काइल का वगैरह तो उसको ऐड करते हैं, जैसे ये इसका 215 नैनोमीटर आएगा, ऐसा स्ट्रक्चर है। तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स के लिए होते हैं, कीटोन्स के लिए। यहाँ पे दिखाया है मैंने, स्ट्रक्चर बुक में भी दिया है, इट इज नॉट मच इम्पोर्टेंट। जो पहले वाला था वो इम्पोर्टेंट था, उसके लिए मैंने बोला है। ये ऑलरेडी वही है, बुक में कुछ इस तरीके से दिया है। ये जो है ये रिसेंटली अभी मैंने ये एक्सप्लेन करने के लिए ऐसा बनाया है, बुक में मैंने ऐसा दिया है। तो सेम थिंग है ना, देखो कॉन्जुगेटेड डाइन कैसा है, सिलेक्ट करना है आपको। ये डाइन है, उसके बाद में ये जो है वो अल्काइल रेसिड्यू है। यहाँ पे भी देखो कौन सा भी एक डाइन सिलेक्ट करो, ये वाला या फिर ये वाला, ये अल्काइल रेसिड्यू। अगर ये वाला सिलेक्ट करेंगे तो इधर वाला डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन रहेगा, इधर वाला सिलेक्ट करेंगे तो इधर वाला डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन और अल्काइल रेसिड्यू। अभी ये क्या है, होमो एनुलर डाइन है। यहाँ पे ऐसा सिलेक्ट वैल्यू लिख लो इसका 253, सॉरी हेट्रो एनुलर ऐसा सिलेक्ट करेंगे। तो ये आप कौन सा भी सिलेक्ट कर सकते हो, हेट्रो एनुलर करो या होमो एनुलर, बाद में यू हैव टू ऐड। अगर ये करेंगे तो वो बोलेगा, उसको बोलेंगे होमो एनुलर, ठीक है। अगर ये डाइन सिलेक्ट करेंगे तो उसको बोलेंगे हेट्रो एनुलर। हेट्रो एनुलर करेंगे तो ये डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन होगा। होमो एनुलर करेंगे तो ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड बेस वैल्यू। अब ये हेट्रोसाइक्लिक है, हेट्रो एनुलर। तो ये पूरा वही एग्जांपल्स है उसके। इफ यू वांट टू लर्न मोर एग्जांपल्स, बुक्स में दिए है, चैतवल में दिए है, आपके हर एक बुक में दिया है, पाविया में दिया है, आपके स्कूप में दिया है।